Mechanism of halogenation using px3. This step is, this transfer is SN2. This is SN2. ठीक है. Noted. So the net reaction is something like this. Sorry. ROH plus px3 giving us Rx. This should be 3 molecules plus H3PO3. ठीक है. Halogenation of carbonyl px3 के साथ या px5 के साथ या SOCl2 के साथ या फिर SO2Cl2 के साथ, इन सब के साथ कार्बोनिल का हैलोजिनेशन हो सकता है. कार्बोनिल हैलोजिनेट होकर के क्या बनाएगा? जेमिनल डाइहलाइड. ठीक है. व्हाट विल इट फॉर्म? इट फॉर्म्स, हाँ, फॉर्म्स जेमिनल डाइहलाइड. कूल. तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है हमारा फाइनल, वो कुछ इस तरह का होता है px3 के साथ. ठीक है. और PO, सॉरी, px5 के साथ द प्रोडक्ट विल बी, अगर यहाँ पर px5 होता, प्रोडक्ट वुड हैव बीन, आई थिंक ये कराया हुआ है ये अल्काइल हलाइड में C वो ने मैकेनिज्म नहीं लिखा था शायद पे. नहीं नहीं, बाकी सबका लिखा था, सिर्फ इसका नहीं लिखा था, ऊपर वाले का POX3. ठीक है. SOCl2 रहेगा तो, या SOX2 रहेगा तो it will become again geminal dihalide X plus SO2 and SO2X2 रहेगा तो XX plus SO3. ठीक है.
Okay, this was the last But reaction of carbonyl, and this was the only thing which was left yesterday. Next thing is carboxylic acids. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में some basic information, very basic information ये बताया हुआ है मैंने आप लोगों को. I'm just walking you through. एक बार देख लो. These five are carboxylic acid derivatives. You know these things. Acid anhydrides, esters, amides, acyl halides, and cyanides. These five are known as carboxylic acid derivatives, right? yes, sir. Types of isomerism shown by acids, carboxylic acids. Generally, they show chain isomerism, position isomerism, and functional isomerism. They can show functional isomerism with following compounds. The first one is hydroxycarbonyl, C double bond O, and OH किसी और कार्बन पे हो, इस कार्बन पे ना होके किसी और कार्बन पे शिफ्ट कर गया, तो hydroxycarbonyl is a functional isomer of carboxylic acid. Esters are another functional isomers of carboxylic acids. कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर फंक्शनल आइसोमर नहीं होएगा? कोई भी ईस्टर फंक्शनल आइसोमर नहीं होएगा. हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेंस, these are going फॉर्मिक एसिड का formic acid का हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेन, this is cyclic ether, and then you have hydroxy group, cyclic ether and then hydroxy group. साइक्लाइजेशन की वजह से एक यूनिट ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एंड सो वो डबल बॉन्ड को कंपनसेट कर लेता है, सी डबल बॉन्ड ओ को, एंड ये OH एक हो गया किसी और कार्बन पे. इट इज सेम थिंग depicted in a different manner. Then you have carbonyl ethers. Carbonyl ethers, these are another functional isomers of carboxylic acids. ठीक है. Now I have listed down some of the common names of various acids. Pentanoic acid को valeric acid बोलते हैं. The C18 is C18, 17 plus 1 18. 18 is stearic acid, acrylic acid, crotonic acid, pyruvic acid. We can note it down, especially NEET students must note it down. या फिर बुक से याद करते हो तो बुक्स में से जरूर याद कर लेना. ठीक है. इज इट ओके एवरीवन? हाँ सर, तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए. देखो ये चीज जेई के भी पेपर्स में आ सकते हैं, मतलब आते हैं इस तरह के. नीचे वाले जो हैं वो नीट के लिए हैं प्राइमरली, बट आप लोग को भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होना चाहिए. अच्छा, वन मोर थिंग, सॉरी, चलो ऊपर से एक बार फिर से कर लेते हैं. लैक्टिक एसिड, alpha hydroxy carboxylic acid. Then we have cinnamic acid. This is made from cinnamaldehyde. Anthranilic acid. Then we have picric acid. This has somewhat importance. We must know it.
ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, good to be known. Dibasic acid, oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic. 5, टॉप 5 याद रहने चाहिए, रहेगा तो अच्छा रहेगा. नॉट सो डिफिकल्ट. ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सुसेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक. मालेइक एंड फ्यूमेरिक ये याद रहेगा आप लोगों को, इसके लिए मैं बोलूंगा नहीं. टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइहाइड्रोक्सी. थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड्स, एंड देन आखिरी में साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड इज ट्राई बेसिक एसिड. ठीक है, साइट्रिक एसिड इज ट्राई बेसिक एसिड. It's not tetrabasic acid, it is just tribasic acid. Okay, dibasic, ये tribasic. ध्यान रहेगा हम लोगों को. और पिक्रिक एसिड कितना बेसिक है? डाई मोनोट्राई. पिक्रिक मोनोबेसिक। वाला मोनो रहेगा. ठीक है, हम्म, और साइट्रिक वाला ट्राई बेसिक रहेगा. ठीक है, let us move ahead. Next is the physical property of carboxylic acids. They have higher boiling point compared to any other organic molecule having similar molecular weight. That is primarily because of stronger H bonding. ठीक है, polarity and hydrogen bonding makes lower acid soluble in water as well as in less polar solvents like ether, alcohol, and benzene. So up to C4, it is highly soluble in water. C5 is partially soluble. C6 onwards, it becomes almost insoluble. ठीक है. Alkali metal salts of carboxylic acids are highly soluble in water. Lower acids highly soluble. Unke salts with alkali metals, they are also highly soluble. We cannot differentiate them. But higher acids, they are insoluble. And once they are reacted with alkali metals, if they are carboxylic acid, they are going to be, they will first of all react with metal, and then those metal carboxylates are going to be highly dissolvable in water or highly soluble in water. Making sense? Irrespective of the size of the carboxylic group. Noted. Water insoluble carboxylic acid dissolves both in aqueous sodium hydroxide और aqueous sodium bicarbonate. ठीक है, बट फेनॉल्स जो होते हैं, the insoluble phenols, they can react with aqueous NaOH, मतलब aqueous NaOH में dissolve करेगा but bicarbonate में नहीं dissolve करेगा. ठीक है, that is what we use as a test to differentiate them, जिसमें differentiation हो सकता है. यानी बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को
फेनॉल्स के साथ डिफरेंशिएट करना है तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेटिंग एंटिटी और आइडेंटिफाइंग एंटिटी. The difference in solubility and their alkali metal salts marks the identification and separation of carboxylic acid through dissolution of salts and generation of acid by treating these salts with strong mineral acids. कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जो बनता है उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं तो वी अगेन रीजनरेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ऑर्डर when the volatility decreases with increase in molecular weight or increase in carbon atoms in the chain. Up to third, it is the order is sharp, irritating, distinctly unpleasant, and then little order. Higher acids are very less volatile, and as they are less volatile, they are going to produce almost no order. ठीक है. These are some of the physical properties. जो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हायर बीपी दिया हुआ है ना, ये जैसे फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ये दोनों जनरली डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. डाइमराइज कर जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Am I making sense? Formic acid and एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये बात पता है हम लोगों को ना. देवांग, देवांग, हाँ सर। बात पता है तुमको कि नहीं पता है? मैं आजकल मैं सेंटर पे नहीं बुला रहा हूँ तो तुमको आने का बहुत मन कर रहा है ना? हाँ। तो इसीलिए मैंने सेंटर बंद ही कर दिया. अब बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. क्यों? मैं ऐसे ही मन किया बंद करने का. डायमंड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, डाइमर. ठीक है. और सी, ये एच अगर CH3 से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3. This is acetic acid डाइमर. ठीक है. ये दोनों ही डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर्स पे. इज इट ओके? डाइमर के फॉर्म में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
नोट कर लिया? ओके, let us talk about methods of preparation. The first method of preparation is from controlled oxidation. Controlled oxidation or oxidative cleavage. अब इसके अंदर में हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड होता है वो होता है अल्कीन्स. अनफॉर्चुनेटली अल्कीन्स में वी डोंट हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस. अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन जनरली बहुत कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बहुत कम हो पाता है एंड उससे जनरल मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, जनरल मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स इज नॉट देयर. अरीन्स के साथ में है. ठीक है, अल्कीन्स के साथ में स्पेसिफिक मेथड्स, अगेन स्पेसिफिक मेथड्स या कैटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मीथेन और इथेन के साथ, मीथेन या इथेन जो है ये दोनों C2H6. ठीक है, ये दोनों जो है हाँ मैंगनीज, मेरा फोन ऐसा है, देखो कैसे स्टेरेट, ऐसा नाइस, स्टेरेट अंदर को कॉल कर सकते in presence of O2 and 100 degrees Celsius. Hello, Ag2O and delta. So जो रहेगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ये फॉर्मिक बना लेंगे या फिर इथेनोइक बना लेंगे. CH3 डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, but this cannot be generalized alkenes and arenes. अरीन्स वाला जनरल मेथड होता है. ठीक है, सपोज वी कैन हैव either this or maybe we can have क्या कर दिया मेरे घर पे? R dash तो मेरे निपन होते हैं, तुम्हारे नहीं. जब भी हुआ होगी ना घर ठीक है, any of them can be treated with. There are list of ये reagent, basically oxidizing agent. One can be H2Cr O4. Second one could be K2Cr2O7. Third one could be KMnO4 in basic medium, not in acidic medium. ठीक है, the fourth one could be O2V2O5. ठीक है, इनमें से कोई सा भी लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट? बेंजोइक एसिड, right? So this one is generic method.
right? There are few more generic methods. If we have cyclic chains, then KMnO4 in OH minus and delta can break down to form HOOC, CH2, 4, COOH. This is adipic acid. ठीक है? These are some of the reactions from alkenes. The second one could be from alkenes. B. अल्कीन से क्या क्या हो सकते हैं मेथड्स हमारे पास? We know that. Oxidation. हाँ, from alkenes there can be ozonolysis. ठीक है. दूसरा क्या होगा? Oxidative cleavage of diols, right? हो सकता है ना? Oxidative cleavage of diols made from alkenes by treatment of, diols formed from alkenes, and then we have oxidative cleavage, or directly treating these alkenes by what? KMnO4 basic medium, right? हाँ सर. या फिर KMnO4 in acidic medium also. So we can have पहला method could be oxidative cleavage of diols formed by treatment of alkene by diols. कैसे बनता है? Bayer's reagent, right? हाँ सर. KMnO4 cold, dilute and neutral. ठीक है. इसके अलावा और क्या होता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. इसके अलावा भी कुछ होता है? BPA, पेरोक्सी एसिड्स. सो इन तीनों के साथ ट्रीटमेंट से हम लोग को क्या मिलेगा? डायोल मिलेगा. और डायोल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हम कैसे करते हैं? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कैसे होता है डायोल्स का? NaIO4 plus catalytic amount of KMnO4, right? HiO4. Yeah, HiO4 directly. So these are the two common reagents which can do oxidative cleavage. Is it okay? So we can have something like this: R, C double bond C, R dash, H and H. This upon treatment with पहला क्या? KMnO4 cold, dilute and neutral. अगर आपके वीडियो कॉल चाहिए ना आपके बेटा का
वापस आता था। तो फिर अब मैंने कट कर दिया, उसके पहले मैंने बोल दिया कि अपना 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 कैमरा ऑन कर देना। इसके बाद सोडियम बाइसल्फेट से ट्रीटमेंट करते हैं, बाइसल्फाइड से, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड एक्वस। बीपीए में क्या रखते हैं? बीपीए के बाद क्या रखते हैं, क्या करना होता है? व्हाट डू वी डू आफ्टर बीपीए? बीपीए के साथ कुछ और डालना होता है क्या? बेसिक मीडियम रखना होगा क्या? देख लेना तो। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाएगा? आर सी एच ओ एच सी ओ एच आर डैश एंड एच, ठीक है। And this will then, it can either be treated with first HiO4 or second NaIO4 O4 plus, and this will be aqueous, and this will as well be aqueous in presence of KMNO4 catalytic amount, ठीक है। This will become RC double bond OH plus R dash C double bond OH. Okay. So that is one thing. What can be the other thing? What are the other methods? इसके साथ और भी कुछ होता है? Page 5. The second method is going to be oxidative cleavage with K2Cr2O7 H plus and delta, or KMNO4 OH minus and delta, or even KMNO4 H plus. The delta is there but very low, ठीक है। हीट करते हैं, बहुत कम हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट इसके साथ करने की जरूरत नहीं होती है। So that is going to give us C double bond C R dash H R and H, and this will produce, we have these three things, Cr2O7 H plus and delta. Second one KMNO4 OH minus delta. Third one is KMNO4 H plus and delta. In any case, we are going to have the carboxylic acids. ठीक है, very good.
कैबिनेट और पॉलिसी दोनों नहीं बता सकते क्या? The last one is, in this regard, the third one is oxidative ozonolysis. Ozonolysis. ठीक है. Again, oxidative ozonolysis में भी the molecules should be in this form. एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी. सबसे पहले O3 के साथ हम लोग को ट्रीट करना होता है रिफ्लक्स, और O3 के साथ ट्रीटमेंट के बाद then we have to treat with it H2O2 and OH minus. This will produce RC double bond OH plus R dash C double bond OH. यहाँ पर H रहेगा, H रहेगा तभी OH बनेगा. ठीक है. अगर H के बदले R रहा तो केटोन बन जाएगा. ठीक है. These things we know. I'm not stressing on these things anymore. We all know about it. ठीक है ना. एक रिएक्शन और भी हमने पढ़ा था एरोमेटिक के टाइम पर, which we must write down over here. Suppose we have any alkyl group attached to except methyl. मिथाइल के अलावा कोई अल्काइल ग्रुप अगर पड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, and suppose we try to treat it with ozone followed by treatment with acidic medium, I mean ozone in acidic medium, number one. And then followed by H2O2 in basic medium. It will form RC double bond OOH. ठीक है. Carboxylic acid. So from aryls also, alkenes के साथ aryls वाला भी दे रहा हूँ. From aryls also we can get carboxylic acid. Okay. Next one is from alkynes, and currently we are just discussing the oxidation. ठीक है. Oxidation के अलावा और कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. So the rest of the reaction, like alkenes can form carboxylic acid also by addition of carbon monoxide. ठीक है. अल्कीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर अल्कीन का एडिशन अगर होता है, that can also create carboxylic acid Koch reaction. That reaction we are going to deal separately in the next segment. इस segment में we are just looking at all the oxidation possibilities from various compounds starting from alkane to aldehydes. Okay. And possibly the controlled ones. Controlled ones matlab those which can be generalized or generic. Making sense? Let us move on to the next set of reaction or formation. Pg
7 आई थिंक 7 ही था ना, 6 रहेगा। अच्छा व्हीलर है जगह, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। Okay, B, C is uh, from alkynes, ठीक है। सो फ्रॉम alkynes के लिए हमारे पास क्या क्या है? The first thing we have is oxidation by KMnO4 in basic medium or basic medium oxidation by KMnO4 basic medium delta or K2Cr2O7 acidic medium delta or KMnO4 acidic medium delta, ठीक है। इनमें से किसी से भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, दैट्स बेटर वर्ड, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो डायॉल का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना करके दे देते हैं हम लोगों को। वी डोंट हैव टू डू मच, you just need to put either of them, either KMnO4 H plus delta or maybe KMnO4 OH minus delta or maybe K2Cr2O7 H plus and delta. This will produce RC double bond OH plus R dash C double bond OH. The second one is oxidative ozonolysis. ऑक्सीडेटिव, या यहाँ पर ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव कुछ होता नहीं है ज्यादा, किसी में भी करेंगे वो एसिड हमको मिल जाएगा, ठीक है। We don't have actually oxidative and reductive over here. We can simply write ozonolysis. So RC triple bond CR dash with first O3 and then either by H2O2 plus OH minus or maybe H2O and Zn. This will produce us RC double bond OH plus R dash C double bond OH. Is it okay?
The next set of reaction will be from either halides or alcohols. अल्कोहल से कैसे बनाते हैं हम लोग एसिड? कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास? What are the reagents which will help us to make it? KMNF होता है, जोन्स रीजन होता है, जोन्स और रिएजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट, ठीक है, और KMNO4, हाँ, OH माइनस डेल्टा या फिर KMNO4 H प्लस K2Cr2O7 K2Cr2O7 H प्लस एंड डेल्टा. जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट है CrO3 plus H2SO4 in acetone, ठीक है. This is not so violent, that is the only thing. So RCH2CH2OH on treatment with any one of them is going to give us RCH2 C double bond OOH, right? Is it okay? हाँ सर. Very good. और क्या क्या मेथड्स हैं? एक ये हो गया, इसके अलावा भी कुछ रहेगा क्या? There can be haloform oxidation, haloform reactions. haloform reactions हो सकते हैं ना अल्कोहल पे, secondary alcohols पे, right? With methyl flanked, so haloform reactions, ठीक है. So basically यहाँ पर हमारा RCHOH पापा क्या आप CH3 मुझे ये रहेगा, चॉकोपाई दे सकते हैं? and we can have NaOX or NaOH plus X2, either of them. This is going to develop RC double bond O minus plus CHX3, ठीक है. This is carboxylic acid, carboxylate. These two are major methods. Then again there is going to be like alcohols तो नहीं, but phenols वगैरह से फेनॉल के ऊपर कार्बोक्सिलेशन हम कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन इज कार्बोनाइलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन इज कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं. that is what we are going to study in next segment, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन. then from aldehydes we are going to have, we can also make it from aldehydes, but from aldehydes के पहले ना I must discuss alkyl halides, ठीक है.
चलिए, अल्काइल हैलाइड के साथ डायरेक्टली हो नहीं सकता है, और ऑक्सीडेशन मेथड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं ट्राई हैलाइड्स का, टर्मिनल ट्राई हैलाइड्स का, एंड दे विल डायरेक्टली प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दैट इज नॉट ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है। दूसरा, टर्मिनल अगर है तो डीएमएसओ के साथ हम रिएक्ट करा करके उसको अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्डिहाइड से फिर हम उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बट डायरेक्ट ऑक्सीडेशन जो है अल्काइल हैलाइड्स का, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो वी कैन पुट इट ओवर हियर, ई अल्काइल हैलाइड्स 1, no direct oxidation method। ठीक है। 2, alkyl, or we can say terminal alkyl halides, terminal alkyl halides can be oxidized using DMSO to aldehydes, and then to carboxylic acid। Okay। ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव में क्या हुआ, कुछ वो बोल डीएमएसओ नहीं समझा मुझे। हेलो। वो डीएमएसओ वाला भी तो था ना, कॉन्डिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, तो डीएमएसओ का ही तो बोल रहा हूँ ना, कि डीएमएसओ के साथ अल्डिहाइड केटोन बनाएंगे, अल्डिहाइड बनाएंगे अगर टर्मिनल अल्काइल हैलाइड रहा तो, और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का नहीं है हमारे पास मेथड। ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम पुटिंग आउट। इज इट ओके? हाँ सर। फाइन। और देयर आर मेथड्स, बट वो ऑक्सीडेटिव मेथड नहीं है। मतलब ट्राई हैलाइड अगर हमने प्रिपेयर कर लिया तो ट्राई हैलाइड से वी कैन हाइड्रोलाइज इट टू मेक ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। बट वो हाइड्रोलिसिस इज नॉट ऑक्सीडेटिव मेथड ना। दूसरा चीज है, लाइक वी कैन ऐड अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया और ग्रिग्नार्ड को कार्बन डाइऑक्साइड पे ऐड कर दिया। ठीक है। सो दैट इज अनदर मेथड जिससे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बट दैट इज अगेन नॉट अ ऑक्सीडेटिव मेथड। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव मेथड, राइट? हाँ सर। So they cannot be discussed over here. There are methods. I'm not saying there are no methods. I'm just saying no direct oxidation methods. So that doesn't mean that there are no methods. We are just talking about oxidative methods as of now. ठीक है। फिर from F carbonyls, ठीक है। First one,
treating aldehydes with mild oxidizing agents ब्रैकेट में like tolerance reagent पहली solution और Benedict solution. Okay. Or we can have with mild oxidizing agent or even strong oxidizing agents like conc HNO3 KNO4 OH minus or K2Cr2O7 H plus or KNO4 H plus. ठीक है. In all cases, we will have RCHO getting converted to RCOOH. Fine. Secondly, ketones के साथ obviously strong oxidizing agents पे concentrated strong oxidizing agent पे cleavage होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड बनते भी हैं बट दैट इज नॉट अ कंट्रोल्ड प्रोसेस. ठीक है. जनरल मेथड वो नहीं हो सकता है. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर. मेकिंग सेंस? अदरवाइज इट कैन बी, आई मीन दैट कैन बी काउंटेड, बट वो काउंटिंग के लिए ही होगा. वी कैन नॉट हैव अ परफेक्ट प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम इट. ठीक है. इंस्टेड देयर इज गोइंग टू बी बेयर्स विनेगर्स. ठीक है. Bayer Villiers oxidation. ठीक है. This is of more rational importance. Oxidation of ketones. Here we can have a better control over the products. RC double bond OR dash upon treatment with BPA or maybe even peroxy sulfuric acid, which is H2SO5. Okay. And we have RC double bond OR dash acidified catalysis, and you have RC double bond OH plus R dash OH. Here R dash has greater migration tendency. राइट. जिसका माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है वही माइग्रेट करता है ना.
ठीक है। और केटोन से दो और मेथड्स भी बनते हैं हमारे पास, एक तो मिथाइल केटोन रहता है, फिर से हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हैलोफॉर्म reactions for methyl ketones. So अब जो भी बनाना है हमको, R इधर ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O और CH3 इधर ले लेंगे, NaOH प्लस X2, या फिर सीधे NaOH के साथ ट्रीटमेंट 1 और 2, and we will have RC double bond O minus. एक सेकेंड रुक जाओ। हेलो हेलो, yes, so this is the haloform reaction of methyl ketones are going to give us carboxylic acid and then this CHX3, right? The next reaction could be cleavage of diols, or sorry, dions. Fourth could be, and this cleavage can be by using anything like HiO4 or even lead lead acetate. ठीक है, cleavage of dions, cleavage of vicinal carbonyls. ठीक है, और RC, अरे डायॉन्स का क्लीवेज, C double bond O. It could be R dash, R dash could be H or anything. Reagents which we can use it, HiO4, ऑक्सीडेटिव वाला भी यूज कर सकते हैं, NaIO4 aqueous plus catalytic amount of KMnO4, catalytic KMnO4, or we can also use here lead acetate, Pb CH3COO whole twice. So any one of them can do the work, and it will lead to the formation of RC double bond OOH plus R dash C double bond OH. ठीक है, so these are the methods. अच्छा, इधर बेयर्स बिलिगर्स लिखा ना, हाँ ठीक है, हाइड्रोलिसिस जरूरी है, हाइड्रोलिसिस के बगैर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, एसिड्स फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, the next reactions, I mean after these oxidation reactions,
देयर कैन बी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में क्या क्या की हाइड्रोलिसिस हमको प्रोड्यूस कर सकता है? सेकेंड कुड बी ऑक्सीडेटिव के बाद हाइड्रोलिसिस। सो सबसे पहला चीज होता है हाइड्रोलिसिस वाले में, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जेमिनल ट्राइहलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल ट्राइहलाइड्स। Geminal trihalides on hydrolysis, they are going to produce aqueous KOH, and we will have RC, OH, OH, and OH, which will automatically lose water, dehydrate, self-dehydration to form RC double bond O and OH. ठीक है. Post this, we can have hydrolysis of acid derivatives. ठीक है. So we can start with hydrolysis of maybe cyanides, ठीक है. साइनाइड्स के बनाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग रहता है हमारे पास. वी कैन ट्रीट RX with, and RX would be 1 डिग्री, ठीक है. 2 डिग्री 3 डिग्री रहेगा तो एलिमिनेशन होने लगेगा. वी कैन हैव आइदर CuCN और मे बी KCN. This will form via SN2, it will form RCN, which either on acidic hydrolysis or on basic hydrolysis, ठीक है. This is going to form acidic hydrolysis में, रुक जाओ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हर जगह पे प्रोडक्ट जो हमारा होएगा वो कुछ ये होएगा, ठीक है. और बेसिक हाइड्रोलिसिस में वी हैव अनदर प्रोडक्ट. एसिडिक हाइड्रोलिसिस में वी विल हैव OOH, ठीक है. और बाकी जैसे N है तो इट विल फॉर्म NH4 प्लस. बेसिक हाइड्रोलिसिस में इट विल बी एसीटेट आयन एंड अमोनिया. बात समझ में आ रही है? अच्छा, CN की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है इसका रिएक्शन बताया है क्या मैंने कभी या नहीं बताया अभी तक? CN का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बताया है मैंने पहले कभी या नहीं बताया है? फर्दर वी कैन हैव, इससे मैकेनिज्म नहीं बताया. मैकेनिज्म नहीं बताया अभी तक, ठीक है कोई नहीं, अभी बता देता हूँ, चलेगा. बेंजीन वगैरह एरोमेटिक सिस्टम अगर रहता है तो एरोमेटिक सिस्टम में बेसिकली हम CN को इंट्रोड्यूस करने के लिए वी फर्स्ट डू नाइट्रेशन. डायरेक्टली CN नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है तो वी फर्स्ट डू नाइट्रेशन, ठीक है. नाइट्रेशन से नाइट्रो प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बन जाता है. नाइट्रोबेंजीन को फिर से हम लोग एनी ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ FeHCl या फिर ZnHCl
या फिर SnHCl, इनमें से किसी के साथ भी इसको रिड्यूस करके एनिलीन बना लेंगे और एनिलीन को फिर हम ट्रीट करते हैं NaNO2 so that it can convert into diazonium HCl. So this gets easily converted into diazonium N2 plus and Cl minus. This is then treated with KCN और CuCN. AgCN नहीं, AgCN के साथ उल्टा रिएक्शन होता है, CN के बदले N साइड से रिएक्ट करने लगता है. AgCN नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है. No AgCN, you can just write it, no AgCN. AgCN के साथ what we will get, we'll start getting ये आइसोनाइट्राइल, ठीक है, N साइड से अटैचमेंट होने लगा. सो साइनाइड हो गया. साइनाइड के बाद फिर से बेसिक या एसिडिक कोई भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. इसका एसिडिक करेंगे, H3O प्लस रखेंगे तो वी विल हैव वन सेट ऑफ प्रोडक्ट. ये रखेंगे तो दूसरा सेट ऑफ प्रोडक्ट आएगा. सो दैट इज वन थिंग. C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4 प्लस, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OO माइनस प्लस NH3. ठीक है. आखिरी जो बनता है ये साइनोहाइड्रीन वगैरह से भी बन सकता है. कार्बोनिल है अगर हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर HCN का एडिशन, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ COH and CN, which upon hydrolysis can again give acidic or basic product like COOH, COOH. एसिडिक अगर रहा तो H3O प्लस में एंड OH माइनस H2O रहा तो प्लस NH4 प्लस, ये रहा तो COO माइनस प्लस NH3. ठीक है. हाँ जी भैया, एक्चुअली हमको नहीं लगता हम पुराना बनवाएंगे. विल बाय फॉर द बाय अ न्यू वन. एक्चुअली हम लोग नया ले लेंगे मशीन. जी जी. हाँ जी भैया, क्लोज कर दीजिए. थैंक यू. आ गया. RCN बेसिकली कुछ इस तरह से रहता है. ट्रिपल बॉन्ड N और H प्लस का एडिशन अगर होगा, H will go to which atom? Will it go to nitrogen or will it go to carbon? बेसिकली यहाँ पे H प्लस ज्यादा होएगा सिस्टम में अगर एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो. एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राइट? इज दिस ओके? H प्लस कौन से एटम पर जाएगा? विल इट गो ऑन C और H? C. हाँ, C पे. C पे क्यों जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज C पे होता है ना साइनाइड आयन का. अबे C पे होता है अगर ये बॉन्ड नहीं रहता है तब ना. ओके. C और N में किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा? नाइट्रोजन. तो H प्लस किस पे जाएगा? नाइट्रोजन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर ही इसको डोनेट होता है. ठीक है.
अब लोन पेयर आ गया तो NH प्लस हो गया, जिसकी वजह से ये ओपन हो जाता है। ठीक है, सो इन दोनों को मिला करके मैं एक सिंगल स्टेप लिख देता हूं, या फिर ठीक है रहने दो, थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं होएगा। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म, ये एक्चुअली ये ऐड होने के बाद ये वाला फॉर्म और दूसरा वाला फॉर्म जो है वो ये टॉटोमेरिक बोल रहा हूँ, ये है क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये दो फॉर्म्स रहेंगे इसके, C डबल बॉन्ड NH with lone pair and positive charge on C. ठीक है, then we will have an addition of H2O molecule, right? H2O अब कहाँ पे ऐड होएगा? It will surely get added on what? कार्बन प्लस, ये कार्बन पे ही ऐड होएगा ना, और कहाँ ऐड होएगा? नाइट्रोजन पे अब थोड़ी ऐड हो सकता है, इसके पास तो लोन पेयर है तो नहीं ऐड हो सकता है, तो इट विल बिकम RCOH2 प्लस एंड डबल बॉन्ड NH। ठीक है, एक्स्ट्रा H प्लस है, H2O में लॉस हो जाएगा इसका, H2O में माइनस हो जाएगा, ये H2O के साथ निकल जाएगा ये, दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड NH and OH। ठीक है, then this can actually tautomerize to get RC double bond O and NH2। Is it okay? Tautomerization प्रोसेस समझ में आ रहा है हम लोगों को? Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पे टॉटोमराइज होकर के ये बन जाता है। इसके बाद फिर से we will have again this same process taking place, H प्लस का पहले एडिशन, H प्लस अभी अब कहाँ पर जाएगा? Will it go to अमोनिया NH2 या ऑक्सीजन? Oxygen. ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन पे जाएगा तो RCOH बन जाएगा ये, और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, राइट? और ये NH2 बन जाएगा, लोन पेयर स्टेबलाइजेशन देगा। ठीक है, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, COH, this can be NH2 plus, so these two are going to be the resonance structure, but ultimate reaction comes from this structure only by addition of H2O। ठीक है, फिर से एक H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है यहाँ पे, this time it will form RCOH OH2 and NH2, there will be a plus sign, is it okay? Then there can be an intramolecular proton transfer of H from here to here. Am I making sense? And
this will be regenerated over here. So this is going to form RCOH, OH and NH3 plus. This being a weak bond, it will eventually break down. ठीक है, ब्रेक डाउन हो करके बन गया NH3 and the bond will go like this. So RCOH, OH and plus charge along with ammonia. ठीक है. Papa, who is ammonia? Who is ammonia? It is a person. It is a compound, beta. It's a material. It's a material. Yes, I it's know a. everything about your class. You know everything about my class. So Yes. nice of you. I Okay. hear about So there will be a, wait. There will be a again a double bond formation and acidic hydrogen can get released from one of the hydroxyls which is there, right? एक स्ट्रक्चर जो होगा हमारा ये कुछ इस तरह का होगा OH plus OH, right? And इसमें से इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होएगा and this will produce RC double bond O and OH plus NH4 plus. Okay, is this okay? So इसमें हमारा दो हाइड्रोलिसिस हो गया CN में. एक तो CN की हाइड्रोलिसिस खुद की हो जाती है और यहां से ये अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है. ठीक है, this is nothing but amide. Right? नोट कर लीजिए और आज के लिए हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं. थोड़ी देर में आप लोग का मैथ्स का लेक्चर चालू